So this is class number 13 of ethics. I'm still waiting for the messages. The messages are not coming. Though my staff is saying everything is fine, but I have seen it in the past that things are not fine if messages are not coming. Okay, now they have started coming. Harsh, good morning. I hope the audio and video are fine. Please confirm. Nikunj Somani, Vivek, Rohit. Okay, good. ठीक है. So I received a strange message from a student. What he was saying, is that, sir, when you are teaching, you are only paying attention to the offline class. You are not paying attention to the live students. And I really introspected कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ क्या? And the fact is that class चलते हुए, I don't remember एक बार भी where I pointed out to a face-to-face student and asked him to say something. If by chance it must have happened that कोई student यहाँ पे doubt पूछा hand raise करके, I have always been communicative that wait, let me listen, I'll communicate the doubt and then correspond. So very strange. In fact, we have been taking names of these people. इनका नाम famous हो जाता है. We don't take a single name of the offline batch students. So we do not have all those biases in your mind. And all are welcome to come to Calcutta and study for 2.5, 3 years till your CFA, L1, L2, L3. Okay. Now, एक दो suggestions based upon the doubts which are coming. Time value of money और DCF जो है ना, उनको slow करो, slow. Do not do it at a pace. Those who have joined new. That means 2 दिन में एक क्लास या 3 दिन में एक क्लास, उस स्पीड से जाओ. ठीक है, नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्टफ, बट डेरिवेटिव्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा तेज़ी से चलाओ, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा. और देखो, इंटरेस्ट आए बिना तो ये पर्पस फुलफिल नहीं होने वाला है तुम्हारे प्रोग्राम ज्वाइन करने का. दिस ओनली वन थिंग, क्या तुमको इंटरेस्ट आ सकता है. इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, आने लग गया, इन दैट केस स्काई इज द लिमिट. और इंटरेस्ट नहीं आया तो इट्स लाइक अ pressure cooker and ultimately जाके people are not able to achieve what they desire for. So derivatives और AI में definitely आएगा. Ethics थोड़ा सा बीच में boring हो जाता है because every day I can't create a Jane Street and elongate the class. So what I have started doing is that मैं कल से ही start किया कि standard number 6 जो है ना, 7 तो कर लिए थे अपने, standard number 6 से मैंने record करना start कर दिए. ओके, मैं 6 और 5 का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि अभी 3 तो आज खत्म हो जाएगा और 4 अपने करेंगे. यू विल अंडरस्टैंड, यही तो स्टफ है. 8 ओके, तो अपने 5 और 6 को आपके साथ शेयर कर देंगे सो दैट वी कैन जंप ऑन टू गिफ्ट्स. अंडरस्टूड? सो दैट विल बी लाइक सुपर सुपर परफेक्ट. क्या होता है कि टीचिंग सो मेनी ईयर्स आई कैन फील एटलीस्ट द टेम्परेचर ऑफ द क्लास, द मोमेंटम, कि नहीं यार कोई चीज़ ड्रैग हो जा रहा है. इंपॉर्टेंट भी है, करना भी है, एट द सेम टाइम अपने को उसको बोर्डम नहीं करना है. ठीक है ना? So this is my plan of action. Okay, so we will enter into standard number 3D. 3D, write down standard number 3D. It is performance presentation. Standard number 3D, performance presentation. और ब्रैकेट में लिख दो रिलेटेड टू GIPS. ब्रैकेट में रिलेटेड टू GIPS. Those who have just joined, you have missed out nothing. Okay, we have not even started. Okay, so feel comfortable. Standard number 3D, performance presentation, ब्रैकेट में related to GIPS, GIPS. So if you remember last class मैंने बोला था कि when you actually revise ethics ना, 3C और 3D कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा. बिकॉज 3C suitability is portfolio management. You will be a champion of portfolio management. तो 3C आते ही ओ ये तो suitability वाला पार्ट, चल चल आगे बढ़. एंड 3D when it comes, once again रिवाइज नहीं करना पड़ेगा बिकॉज गिफ्ट्स इतने बढ़िया से करेंगे ना. तो अभी अपने टाइम दे रहे हैं, बट लेटर ऑन 3C and 3D are not to be revised at all. Okay, they are like bonus in between. Okay.
जो 3D है परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन, वो ये बोल रहा है कि ऑब्वियसली जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, दे आर वांटिंग टू मैनेज मोर एसेट्स और लेस एसेट्स. मोर एसेट्स, अगर मेरा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अभी 1200 करोड़ से 1200 करोड़, तो मैं चाहता हूं काश 1 साल 2 साल 3 साल में आई रीच 10,000 प्लस करोड़, बिकॉज आई एम जनरेटिंग अ फी ऑन दैट ना. वो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसी पे तो एक सर्टेन परसेंटेज अपने अर्न करते हैं. ठीक है, अगर वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स है तो इन दैट केस दे विल अर्न अराउंड 0.5%, 1% ऑफ दैट. अगर हेज फंड है they will earn 0.5, 1%, but they will also earn incentive fee on performance. Understood? But the fact is that the AUM, ये word सुना होगा, assets under management, that is the main business model of an investment management firm. काश और clients आते जाए. ठीक है? Isn't it true for every business? काश sales बढ़ते जाए. As a tuition center, we will wish that काश और students join करते जाएं, because that's our top line. Correct है? In order to attract new customers, the investment advisory firm or the investment management firm will obviously shout at the top of its voice that हम क्या portfolio manage करते हैं. What a wonderful portfolio management we do. ठीक है, जिसमें we generate returns which are greater than the benchmark. Hope आपको benchmark समझ में आ रहा है. If we are managing large cap stocks, which stocks? Large cap. तो द बेंचमार्क इन इंडिया कैन बी निफ्टी और सेंसेक्स, एकदम अलाउड है. अगर मैं लार्ज कैप इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं तो बेंचमार्क कैन बी निफ्टी और सेंसेक्स. ठीक है, तो मैंने सेंसेक्स या निफ्टी को बीट किया. सपोज द मार्केट रियली गोज डाउन एंड सेंसेक्स फॉल्स बाय 10%, बट वी फॉल बाय 4%, तो वी जनरेटेड एन अल्फा ऑफ 6%. मार्केट फेल बाय 10%, -10%, वी फेल बाय 4%. ठीक है, पर क्लाइंट को बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग बताए थे कि हम लोग का बेंचमार्क निफ्टी है, तो अगर हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए और स्टॉक मार्केट गिरा तो हम लोग भी तो गिरेंगे ही ना. पर देखिए हम लोग कम गिरे, 4% गिरे और वो 10% गिरा, यानी 6% अल्फा. अल्फा का मतलब होता है योर सुपीरियर परफॉर्मेंस. समझ गए? तो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू क्लेम इन ऑल द प्रेजेंटेशंस दैट विल हैव विथ आवर क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. क्लाइंट्स वो हो गए जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स आप लोग हैं. तो मैं क्या दिखाना चाहूंगा आप लोग को कि भाई अभी CFA का रिजल्ट्स आया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आया है, हमारे सेंटर ने बहुत ही बढ़िया किए है. ठीक है, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप दूसरे को रेफर करोगे कि यार संजय सर से ट्यूशन ले. दूसरा, जो वेबिनार या सेमिनार होता है या फिर हम लोग के सोशल मीडिया के थ्रू वी विल ट्राई टू शो दैट वी हैव सच स्प्लेंडेड रिजल्ट्स, सो दैट जो लोग वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड एंड ज्वाइन ट्यूशन विद अस. Sorry, I'm taking the example of tuition because it's just directly relatable. ठीक है, तो the same thing portfolio management firms will do ना. Now it is high time that I believe India में coaching centers के लिए standards of performance presentation होना चाहिए. Believe me, because there's a lot of gray area and I'm telling you we also do it because we have to do it. But otherwise कोई standard set नहीं है कि भाई how will the coaching centers represent performance. और CFA का तो अलग बात है जहां पे रैंकिंग सिस्टम नहीं है, वरना CA वगैरह में जहां पे रैंक्स है, oh God, so much of noise is created after the CA results come out. We too create it, by the way. I'm not giving moral science lecture. तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, they also try to show their performance in a better light, window dressing, in order to attract more and more clients. Existing client और पैसा दे, new clients अपने पास आए. अगर इसमें अपने कंट्रोल नहीं किए ना तो बहुत ही गलत हो जाएगा. एंड देयरफॉर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई यू हैव टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑन परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन. दो स्टैंडर्ड्स आर नोन एज गिप्स. ओके, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी जैसे अपना एथिक्स का स्टैंडर्ड्स है ना जो कर रहे हैं अभी, वैसे गिप्स पे अलग से स्टैंडर्ड्स है. जैसे मैंने लास्ट क्लास बोला था, लास्ट क्लास सॉफ्ट डॉलर्स पे अलग से स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप जो क्लाइंट का ट्रेड ब्रोकर के पास डाल रहे हैं उसके ऊपर अलग से स्टैंडर्ड्स है. अंडरस्टूड? तो हर चीज पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है. जैसे अकाउंट्स में IFRS नाम सुना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. वो स्टैंडर्ड्स है रिगार्डिंग कंपनीज लोग अपना PL अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब कैसे बनाएगा. सो दीज आर ऑल डन इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस एंड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द क्लाइंट्स.
ठीक है। तो ये आप ब्रॉडर इंटरेस्ट समझो। अब इसमें सबसे ज्यादा एब्यूजिव प्रैक्टिसेस क्या होता है? एब्यूजिव प्रैक्टिसेस होता है नंबर 1 सर्वाइवरशिप बायस। ये वर्ड आप कम से कम 100 टाइम्स क्लासेस में सुनोगे। हो सकता है पहली बार अभी सुना है, या जिन्होंने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है शायद एक बार वर्ड आया होगा, सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स, ओके मैं एग्जांपल स्टूडेंट से बोल रहा हूं, CFA क्लासेस ज्वाइन किए, से 1000 स्टूडेंट ज्वाइन CFA क्लासेस विथ मी, उनमें से 300 स्टूडेंट्स बीच में ही दे स्टॉप्ड कमिंग टू द क्लास, दे ड्रॉप्ड आउट कि यार ठीक है बैड लक, फीस दे दिए बट अपने नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो बाकी जो 700 स्टूडेंट्स है वो लोग एग्जामिनेशन दिए, और वो 700 स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन दिए उसमें हमारे पास सपोज 600 स्टूडेंट्स पास किए, 600। तो in that case I am showing the results of 700 students who appeared for the exam. I am not talking about the 1000 students who joined. तो in that case मैं अपना रिजल्ट परसेंटेज 6/7 दिखा रहा हूं, 6/7 अराउंड 85%। जबकि वैसे देखें तो रिजल्ट है 600 डिवाइड बाय 1000, हाउ मच? 60%। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस। नाउ वंस अगेन, मैंने कभी कभी बोरिंग हो जाता है मेरे को सुनना कि द बेस्ट पार्ट अबाउट द CFA प्रोग्राम इज दैट सर्वाइवरशिप बायस आपको डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर होता ना BCom या CA का एग्जाम, तो सर्वाइवरशिप बायस के ऊपर आपको 2 पेजेस लिख के आना पड़ता है। इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट झमेला, कैसे कैसे लर्न करें, एंड देन पीपल वुड हैव प्लेड विद देयर इंग्लिश का स्ट्रेंथ, ठीक है, कि जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है, वीक है। बट वैसा कुछ नहीं है, तुमको समझ में आ गया है ना, ओ सर्वाइवरशिप बायस केवल सर्वाइवर्स का रिपोर्ट कर रहे हैं, जो टर्मिनेटेड अकाउंट्स है उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स इंडिया में करते हैं। When they come to us, कोई वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, से 360 डिग्री इज अ पॉपुलर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, सैंक्टम इज अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट इज अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स व्हेन दे कम टू द क्लाइंट, many of the times they are reporting performance of those clients which are there with them. वो clients जो दुखी होके, परेशान होके उनको छोड़ दिए बिकॉज आपने उनका पैसा ठीक से मैनेज नहीं किया, उनको रिपोर्ट नहीं करते। तो सर्वाइवरशिप बायस शुड बी अलाउड और शुड नॉट बी अलाउड? शुड नॉट बी अलाउड। इसका मतलब जब परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेंगे तो 1000 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस प्रेजेंट करना है या 700 स्टूडेंट्स का? 1000 स्टूडेंट्स का। ऑफ कोर्स ये जब आएगा क्वेश्चन में तो इंग्लिश के फॉर्म में आएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज द एग्जांपल गिवन वाज वेरी वेरी क्लियर, जिससे कि एकदम आपको समझ में आ गया सर्वाइवरशिप बायस। टर्मिनेटेड अकाउंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं? टर्मिनेटेड अकाउंट्स को ड्रॉप नहीं करना है। इन योर परफॉर्मेंस यू विल शो द परफॉर्मेंस ऑफ टर्मिनेटेड अकाउंट्स ऑल्सो। बट ऑब्वियसली अगर 1 लाख क्लाइंट्स है मेरे, 1 लाख क्लाइंट्स आर देयर, 1 लाख स्टूडेंट्स आर देयर, उन सब का परफॉर्मेंस कैसे दिखाएं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इन दैट केस अपने उनको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CFA लेवल 1 एक कैटेगरी हो गया मेरे लिए एज अ ट्यूशन सेंटर, CFA लेवल 2 कैटेगरी हो गया, CFA लेवल 3 कैटेगरी हो गया। आई कुड हैव गॉन फॉर माइनर कैटेगरी, CFA लेवल 1 इंडिया स्टूडेंट्स, CFA लेवल 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या CFA लेवल 1 फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैटेगराइज करें ना वैसे। तो वैसे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म्स कैटेगराइज करते हैं कि हमने जो स्मॉल कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो मैनेज किया है, कौन सा पोर्टफोलियो? स्मॉल कैप ग्रोथ। और का अब इतनी क्लासेस में 3-4 बार मैंने इस तरह के नाम ले लिया, आई थिंक अभी कंफर्टेबल थोड़ा थोड़ा हो गया होगा। स्मॉल कैप, छोटी कंपनीज, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, उनका जो पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करते हैं वो एक कैटेगरी हो गया। उस कैटेगरी को कोई याद है क्या वर्ड बोलते हैं? देयर वाज अ वर्ड फॉर इट, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोर्टफोलियो। एक पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस हुआ था, कोई बात नहीं, आज के क्लास के बाद डेफिनेटली याद रहेगा। कंपोजिट, क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट। कंपोजिट इज द वर्ड वी यूज। तो कंपोजिट रेफर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट अकाउंट्स और पोर्टफोलियोज मैनेज्ड एज पर अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, मैनेज्ड एज पर अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, दैट्स कॉल्ड अ कंपोजिट, ठीक है। तो स्मॉल कैप ग्रोथ इज अ कंपोजिट ऑफ सपोज अ पर्टिकुलर फर्म, से HDFC AMC, okay, HDFC Asset Management Company is the biggest asset management company in India, by the way. HDFC AMC is the biggest asset management company in India, for your information, ठीक है। तो HDFC AMC अपना स्मॉल कैप ग्रोथ
उसका एक कंपोजिट है और उसका परफॉर्मेंस इस रूम में, सपोज दिस इज द ताज, ओके, और ताज में वी हैव इनवाइटेड through our references existing and prospective clients, and we are giving a presentation of small cap growth composite. So we are supposed to उसके अंदर include all the accounts in the small cap growth composite या only include those accounts which have stayed with us, all the accounts. Those who got terminated उनका भी परफॉर्मेंस इंक्लूड करना है. एक एक अकाउंट नहीं दिखा सकते, ये मिस्टर रॉय है, ये हमारे पास पैसा लगाए थे इस समय, देखिए हमने कहां पहुंचा दिया, ये मिस्टर जॉय है. वी कांट डू दिस. बट वेटेड एवरेज, क्या वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में भी कॉम्प्लिकेशन है. कैसे वेटेड एवरेज लेंगे, क्या वेट्स लेंगे, नहीं लेंगे. लेवल 1 में वो थोड़ा बहुत है गिब्स के अंदर, लेवल 3 में वो खोल के, लेवल 3 में गिब्स का मास्टरी है और लेवल 1 में गिब्स का इंट्रोडक्शन. अंडरस्टूड. तो हमने गिब्स करेंगे, बट यू अंडरस्टूड द बेसिक्स. कोई भी स्टैंडर्ड्स, ओके, एथिक्स फॉर एग्जांपल, एथिक्स रियल लाइफ में जो लोग सीएफए नहीं है, जो लोग कवर्ड पर्संस नहीं है, सपोज आई एम अ पोर्टफोलियो मैनेजर बट आई एम नॉट अ सीएफए, आई हैव डन एमबीए, आई एम अ सीए सपोज, एम आई बाउंड टू फॉलो एथिक्स ऑफ द सीएफए इंस्टीट्यूट? नो, वी नो सीएफए इंस्टीट्यूट का एथिक्स तो केवल कवर्ड पर्संस के लिए जिसका डिस्कशन हुआ था. वैसे ही जो गिब्स है ना, जीआईपीएस जो बोल रहा हूं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, दे आर वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स विच फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो. दे आर वॉलंटरी. इफ यू आस्क मी कि सर इन इंडिया हाउ मेनी फर्म्स और व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्म्स मे बी फॉलोइंग गिब्स, आई थिंक द आंसर वुड बी 1 or 2%. I have not studied this. GPT से स्टडी करना चाहिए कि which firms in India are GIPS compliant. Really interest. आई बोलते बोलते ध्यान आया, I will definitely for my interest check it out कि कौन सा फर्म्स है जो GIPS compliant है इंडिया में. मेरे को तो डाउट है. ठीक है, तो GIPS compliant फर्म्स बहुत कम है. यूएस में काफी सारे हैं, ठीक है, यूरोप में भी, यूके में भी द स्ट्रीम में स्टार्टेड, बट इंडिया में फॉर एग्जाम्पल नहीं है. तो GIPS का स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना, इज इट अ वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड नंबर 3D? No. GIPS standard follow नहीं करना, is it a violation of 3D? No. GIPS standards are voluntary. तो they know while teaching कि GIPS बहुत जन follow नहीं कर रहे होंगे, but आप लोग covered persons हो, you all are covered persons. तो in that case, at least something you should understand and know regarding performance presentation. क्या? कि अपने को terminated accounts को भी disclose करना है. और अपने एक portfolio में small cap growth में can we show the performance of a representative account? I repeat, small cap growth is a particular type of strategy of ours. Can I show the performance of a representative account? इसका मतलब some people might have understood, some people might have not understood. Now let me explain. Okay, वरुण बंका बोल रहा है सर इनाम, AMC and SBI follow GIPS. वो लोग चेक कर लिए ना, that's the advantage. घर से बैठे कर रहे हैं तो they have checked. इनाम, AMC एंड SBI फॉलोज गिब्स. थैंक यू वरुण हम लोग को अपडेट करने के लिए. ठीक है, एंड आई एम सॉरी दैट आई सेड दैट नो फर्म फॉलोज गिब्स. सो बीच में मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था एक तो, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. इस रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब क्या है समझे? मेरे से CFA लेवल 1 इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनमें से मैं एक स्टूडेंट का रिजल्ट और उसका करियर को हाईलाइट करूंगा. देखो देखो देखो, ये स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ा था, ये पढ़ा था 2007 में, अभी ये कहां पहुंच गया है, L1 किया, L2 किया, L3 किया. मैंने अपने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर हाईलाइट कर, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. शुड दैट बी अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड. इट्स अ वायलेशन. You can't show the performance of a representative account. You have to show the performance of all the accounts as a weighted average. But obviously you should do it composite wise. What wise? Composite wise. कि small cap growth में जैसे हो सकता है CFA प्रोग्राम में मेरा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, ब्रिलियंट. हो सकता है FRM में मेरा उतना ब्रिलियंट नहीं है. इट इज पॉसिबल ना, दैट एक कोर्स में बहुत ब्रिलियंट है, दूसरे में नहीं है. तो इन दैट केस पीपल शुड नो. When they will know, then only they will be able to allocate कि सर से ये करेंगे, इस पर सर से ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग. Are you understanding? So that way composite wise performance होगा. सारे accounts का performance दिखाना है, weighted average दिखाना है, terminated accounts का भी दिखाना है. ठीक है ना? अब सपोज हम लोग मंथली परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपने क्लाइंट्स लोग को मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हैं. तो जनवरी एंड में मतलब 2nd 3rd फेब को जनवरी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है.
फिर वैसे ही 2-3 मार्च को फेब का परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, फिर वैसे ही अप्रैल बिगिनिंग में मार्च का परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, ऐसे मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट होते हैं। एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स देखते हैं और नए क्लाइंट्स लोग भी देखते रहते हैं। अब क्या हुआ सुना प्लीज, 12th ऑफ फेब को एक नया अकाउंट मेरे पास आया, माने एक नया क्लाइंट मेरे को ज्वाइन किया विद अ कॉर्पस ऑफ अराउंड 400 करोड़ इन द स्मॉल कैप ग्रोथ कैटेगरी। विच कैटेगरी? स्मॉल कैप ग्रोथ कैटेगरी में 400 करोड़ का एक नया क्लाइंट मिला, बहुत ही खुशी की बात है ना। वो जो क्लाइंट है वो 400 करोड़ तुम्हारे ख्याल से कैश लेके आया था या उस क्लाइंट का 400 करोड़ का ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो होगा? व्हाट डू यू थिंक? ऑलरेडी पोर्टफोलियो होगा। कौन कैश रखता है? पागल थोड़ी है। 400 करोड़ का उसका डेफिनेटली कोई पोर्टफोलियो होगा, या तो खुद से मैनेज कर रहा होगा, परेशान हो गया होगा डुबा के, और या फिर कोई और से मैनेज कर रहा होगा, वो उसका पैसा डुबा दिया होगा, तो इसलिए वो मेरे पास आया है। करेक्ट ना? वो 12th को आया है। कब आया है? 12th को। अब बात है कि अपने कुछ टाइम लगेगा उसका आईपीएस वगैरह ड्राफ्ट करने में एंड ऑल दैट, है ना, उसको समझने में वगैरह। अकॉर्डिंगली होता है ना, ट्रांजिशन फेज होता है। जब तुम लोग भी जैसे ज्वाइन कर रहे हो तो यू ऑल हैव बीन टोल्ड बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस प्लीज कर लीजिएगा, टीवीएम डीसीएफ कर लीजिएगा। दीज आर ऑल ट्रांजिशन फेजेस ना, व्हाट टू डू, समथिंग हैज टू बी डन। ठीक है, तो वैसे ही क्लाइंट का अब एक दिक्कत आती है कि अपने उस पर्टिकुलर क्लाइंट का, जो 400 करोड़ वाला क्लाइंट है, उसका परफॉर्मेंस जो दिखाना स्टार्ट करेंगे, माने इंक्लूड करेंगे स्मॉल कैप ग्रोथ पे, कब से? एक हुआ सर 12th से ही, बिकॉज 12th को वो आ गया। एक हो गया 15 से, सर 3 दिन रुक जाइए। एक हो गया सर 1 मार्च से दिखाइए ना। एक हो गया 1 महीना जब बीत जाए ना, एग्जैक्टली 12th फेब से 12th मार्च, 1 महीना। तो 1 महीना को ट्रांजिशन पीरियड मान लेते हैं तुम लोग का भी, कि 1 महीना तुमने सीएफए ट्यूशन ज्वाइन करके तुम्हारा रेगुलर हो गया, तो मान लेते हैं अब तुम समझ गए सब कुछ, कैसे सर कराते हैं, कैसे नहीं कराते, सब कुछ। तो देयर इज अ फर्म का एक पॉलिसी होना चाहिए इसके बारे में, इजंट इट? फर्म का पॉलिसी, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फर्म इनकॉर्पोरेट्स न्यू क्लाइंट, द फर्म शुड हैव अ पॉलिसी कि नए अकाउंट्स को कब से हम लोग परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर पॉलिसी नहीं है, और या फिर बदमाशी के कारण क्या कर सकते हैं, सुनना, 12th को 2 क्लाइंट्स आया था, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, दोनों का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था। मैं उसको समझ रहा हूं अभी क्लाइंट को धीरे धीरे, ठीक है। अब क्लाइंट ए के पोर्टफोलियो में 1-2 स्टॉक लंबा चौड़ा था, माने ज्यादा पैसा, 400 करोड़ में से 200 करोड़ एक स्टॉक में था। कोइंसिडेंटली इस महीने में उस स्टॉक में एक न्यूज आ गया, पॉजिटिव न्यूज, और वो स्टॉक जोर से बढ़ गया तो क्लाइंट का 400 करोड़ पे बहुत जोर का फायदा हो गया, विच इज नन ऑफ माई पैटिंग ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट इज ब्रिंग टू द टेबल। जो दूसरा वाला क्लाइंट है उसका भी ऐसा ही था, 400 का 200 करोड़ एक स्टॉक में था, और स्टॉक के बारे में नेगेटिव न्यूज आ गया, वो जोर से गिर गया, खराब परफॉर्मेंस। अब बदमाशी ऑब्वियसली क्या होता है समझो, जब अपने को फेब का परफॉर्मेंस दिखाना है सारी दुनिया को, तो हम लोग जो फर्स्ट वाला क्लाइंट है जिसका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, अगर उसको इंक्लूड कर लेते हैं फेब के परफॉर्मेंस में, तो पूरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस उठ जाएगा, और सेकंड वाले को एक्सक्लूड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट नॉर्मल पीपल विल डू, especially when there are no legal guidelines. This is unethical. This is unethical. You follow a certain policy, na? If the policy is that you have to include it from the date of joining, it's okay, include all the date. And from the date of joining सबका include करो। तो I am not saying कब include करो, मैं बोल रहा हूं कंपनी का एक पॉलिसी होना चाहिए, उस पॉलिसी के अनुसार include करो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन, चेरी पिकिंग मत दिखाओ। फाइन विथ यू? ठीक है ना? उसके बाद जब अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो अब मैं जो रिटर्न्स दिखा रहा हूं, सपोज मैं दिखा रहा हूं मंथली जैन का रिटर्न, फेब का रिटर्न, मार्च का रिटर्न्स, क्या वो रिटर्न्स ग्रॉस ऑफ फीस है या नेट ऑफ फीस है? इसका मतलब वो रिटर्न्स में से मेरा जो फीस है ना, वो माइनस किया हुआ है या फिर मेरा फीस माइनस नहीं किया हुआ है, दोनों ही अलाउड है दिखाना। आपको जैसे भी दिखाना दिखाओ, पर बोल तो दो कि ग्रॉस ऑफ फीस है या नेट ऑफ फीस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बता तो दो कि ग्रॉस ऑफ फीस है, नेट ऑफ फीस है। अभी जब रिजल्ट आया ना मे का, ठीक है, मैं बार बार ट्यूशन के एग्जांपल में जा रहा हूं, बिकॉज आई कैन सी एंड फील दैट आप लोग को कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है उससे, तो डू नॉट माइंड माय डाइवर्जन। अभी जब मे का रिजल्ट्स आया था, जब आप लोग का बैच चालू हुआ था, उसी समय मे का सीएफए का रिजल्ट्स आया था, जो लोग मे में एग्जाम दिए थे व्हेन आवर बैच स्टार्टेड, और उस समय कई सारे स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन किए जिन लोग का मे का रिजल्ट्स नेगेटिव आया और कहीं और से क्लासेस लिए थे, ठीक है। तो अब वो लोग नवंबर 25 के लिए पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी उनका पढ़ा हुआ है दूसरे टीचर से, खुद से, मेहनत से, अकॉर्डिंगली मैंने उनको पढ़ाया, वो लोग पास कर गए।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब जो ये जो अकाउंट इंक्लूड होते हैं ना, उसमें ये दिक्कत की बात आती है। तो अकॉर्डिंगली वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कब से इंक्लूड करना है, कब से नहीं करना है। तो रीजन क्या है? पॉलिसी को फॉलो करना है। आपकी कंपनी का पॉलिसी है, वो कंपनी के पॉलिसी को फॉलो करना है, ठीक है ना। चेरी पिकिंग नहीं करना है, मैंने बोल दिया। टर्मिनेटेड अकाउंट्स को दिखाना है, मैंने बोल दिया, ठीक है। हाँ, और एक चीज, अभी माने इट डजंट मैटर, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, अपने सारे रिटेल पीपल को हमेशा केवल ब्रांड दिखता है, ब्रांड के पीछे जो लीगल स्ट्रक्चर दिखता नहीं है। तो लेट मी टेल यू अबाउट माय कंपनी संजय सराफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वी वर रनिंग बिजनेस एंड बुकिंग रेवेन्यू अंडर अ कंपनी कॉल्ड संजय सराफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, SSEI। अभी 2 महीने पहले से वी हैव शिफ्टेड द बिजनेस टू अनदर कंपनी कॉल्ड एक्सेलाइटिक्स, ठीक है। तो ना दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न ऑल्सो, बिकॉज हाउ डज इट मैटर कि सर आप रेवेन्यू कहां बुक कर रहे हैं। तो वी हैव बुकिंग अंडर एक्सेलाइटिक्स में बुक कर रहे हैं, ऑल्दो द ब्रांड इज SSEI। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाई डिड आई गिव दिस एग्जांपल? कई बार कंपनीज जो है वो लोग का कुछ मर्जर या एक्विजिशन होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स का भी मर्जर्स होगा या एक्विजिशन होगा। तो जब होगा ना, तो दे वे मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो अंडर अ सर्टेन एंटिटी, a portfolio was managed under a certain entity. Later on the portfolio shifted to another entity. Got it? So when I am showing last 10 साल का performance, 10 साल के performance में से 6 साल that portfolio was under a different entity legally, and 4 years it was under the current entity जो चल रहा है। Okay, to some extent I am communicative, I believe. When I am showing 10 साल का performance, तो इन दैट केस द क्वेश्चन आता है, सर कैन यू शो दैट 6 साल का जो अलग एंटिटी में था, बट कैन यू मिक्स दैट 4 इयर्स का विद द 6 इयर्स का और नॉट? ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपने, समझ गए? तो डिस्कशन ये है कि यस, इफ द पीपल, द प्रोसेसेस एंड द सिस्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो आर द सेम इन दो 6 years and 4 years, it is the same thing going on. Legally it was same, just the name change was there and all that. You can club that 6 years performance with 4 years performance, but with the disclosure, about the fact that वो 6 साल हम लोग इस एंटिटी के अंदर काम कर रहे थे, अभी हम लोग इस एंटिटी के अंदर हैं, ठीक है। तो और हमने इसको क्लब किया है बिकॉज मोर और लेस सेम, मैंने डिस्क्लोजर। मैं अभी तक रीड नहीं किया टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है इसके बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, वो ये है, डिस्क्लोजर शुड बी फेयर, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। फेयर, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। मेरे को इसको याद करने में क्या इजी लगता है, अगर फैक्ट वर्ड पकड़ ले, कौन सा वर्ड? फैक्ट, टी एक्स्ट्रा, तो टी हो गया ट्रांसपेरेंट, वो तो चलेगा ही, तो अंडरस्टूड। तो इट्स रिटन फेयर, एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ठीक है। बट आई थिंक द बेटर वर्ड इज फैक्ट, बिकॉज कौन सा तो हम लोग को लिखना है, हमसे तो पूछेगा ही नहीं, बता 3D में क्या रूल है, ठीक है। तो मेरे याद करने के लिए डिस्क्लोजर शुड बी फेयर, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट पे जा रहे थे ना, अपने सारे अकाउंट्स का दिखाओ, टर्मिनेटेड अकाउंट्स का, ठीक है, तो वगैरह। और एक चीज, पोचिंग का मतलब क्या होता है सबको पता है, पोचिंग एवरीबॉडी नोस। अभी बहुत बड़ा न्यूज आया था करीब 15 दिन पहले कि मेटा एज इन ज़करबर्ग हैज बिकम वेरी वेरी अग्रेसिव इन पोचिंग द AI टैलेंट फ्रॉम अदर एंटिटीज एट डबल ट्रिपल पैकेज। तो आई होप पोचिंग इज ओके। दूसरे फर्म के एम्प्लॉइज को टानना, इफ यू आर अ ट्यूशन सेंटर, तो दूसरे ट्यूशन सेंटर्स के फैकल्टी को अगर हम लोग टान रहे हैं हायर पैकेज देके, दैट्स कॉल्ड पोचिंग, अंडरस्टूड। नाउ सपोज एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, सपोज HDFC AMC, उन्होंने SBI का एक पर्टिकुलर टीम है, SBI का एक पर्टिकुलर टीम है विच मैनेजेस स्मॉल कैप ग्रोथ कंपोजिट। कौन सा? स्मॉल कैप ग्रोथ कंपोजिट, और फिनोमिनल परफॉर्मेंस है, मन से बोल रहा हूं मैं। SBI का एक स्मॉल कैप ग्रोथ कंपोजिट है जिसका फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। HDFC AMC का जो स्मॉल कैप ग्रोथ है उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत ट्राई किए, नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली जाके उस पूरे टीम को पोच कर लिया, यानी द लीडर ऑफ द टीम एंड ऑल द अदर मेंबर्स इन द रिसर्च टीम, उस पूरे को पोच कर लिया। नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ HDFC, डबल पैकेज पे, इंसेंटिव्स पे। और पोच करने के बाद उनको कंप्लीट फ्रीडम दिया कि जैसे आप लोग वहां पे चला रहे थे ना, आप लोग SBI में जैसा काम कर रहे थे, आप लोग को यही करना है, हम लोग आपको अलग से कुछ गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं, आप लोग सेम टू सेम आपको लोग यहां करना है। तो बात आ रहा है, क्या हम लोग उस केस में स्मॉल कैप ग्रोथ का परफॉर्मेंस, सिंस ये टीम करने वाला है, तो उसका जो पुराना परफॉर्मेंस SBI में था
उसको हम लोग इस टीम का परफॉर्मेंस बोल के दिखा सकते हैं क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी जब हम लोग ताज में कॉन्फ्रेंस हो रहा है स्मॉल कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो, एंड एक मिनट मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया, सपोज हम लोग का स्मॉल कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो था ही नहीं, एचडीएफसी का था ही नहीं, ये नया चालू किया स्मॉल कैप ग्रोथ, और ये हम लोग पोच करके लाए एंड ऑल दैट, और सेम टीम को लाए हैं, सेम प्रोसेस को लाए हैं। अगर आपने सेम टीम को लाया है, सेम प्रोसेसेस को लाया है, उनको ऑटोनॉमी दी है, क्या दिया उनको? ऑटोनॉमी दिया है कि टू डू इट दैट वे ओनली, तो उस केस में आप उनका परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। यू कैन से विद द डिस्क्लोजर दैट दे हैव कम फ्रॉम अ डिफरेंट एंटिटी एंड नाउ दे आर गोइंग टू मैनेज दिस, इज अलाउड। पोचिंग वैसे इलीगल है, वो अलग बात है, तो मॉरल साइंस का तो बात करना मत, डू नॉट गेट डाइवर्टेड। इंडस्ट्री का प्रैक्टिस है, लोग पैकेज में काम करते रहे, फ्री विल है ना, तुमको एक सर्टेन सैलरी मिल रहा है, कोई और हायर कर रहा है, तो इफ तुम अगर इसको इलीगल ट्राई किए अनाउंस करना, तो फिर तो काम ही कैसे चलेगा? तो इलॉजिकल डाइवर्जन मत करो, अभी चीज समझो। यूजुअली क्या होता है, ओनली अपने फ्यू मेंबर्स को वहां से लाते हैं, पूरे को नहीं, फ्यू मेंबर्स को। यूजुअली क्या होता है, हम लोग अपने खुद का पॉलिसी उनके ऊपर थोपते हैं, तो जब ये सब कर दिए तो उस केस में अलाउड नहीं है। बट एक्सेप्शन क्या, अगर आपने पूरा का पूरा टीम लेके आया एंड ऑल दैट, तो उस केस में अलाउड है, उस टीम का परफॉर्मेंस अपना परफॉर्मेंस बोल के बोलना। अंडरस्टूड? ऑल्दो आई डाउट वेदर इतना डीप में जाएगा क्या क्वेश्चन पूछते हुए लोग, ये शायद मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, लेवल 3 लेवल 1 सब चल रहे हैं ना। एंड अभी राइट नाउ आई हैव बीन सीरियसली ऑक्यूपाइड इन चेकिंग लेवल 3 का पेपर्स, बिकॉज उनका रिटर्न होता है ना, तो उसमें सो मेनी पेपर्स आई एम चेकिंग, तो लेवल 3 ज्यादा चढ़ा हुआ है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बोलते हुए टू रिटेन, बट ये वाला पॉइंट मैंने ज्यादा लेवल 3 के अंदर घुस गया आई थिंक। तो एक काम करते हैं, यू हैव गॉट quite a good idea about what to be done, what not to be done. Remember, अगर बोलेगा this firm does not follow GIPS, क्या वो वायलेशन है? नहीं, कोई वायलेशन नहीं है GIPS फॉलो करना। जैसे कंपनीज, लोग आपको पता होगा, कंपनीज बोलो नॉर्मल, रिलायंस, इन्फोसिस, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, एनुअल रिपोर्ट, वो ऑडिटेड होता है, सुना होगा। जो कंपनीज होता है उनको एनुअल ऑडिट करना पड़ता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जो परफॉर्मेंस का प्रेजेंटेशन होता है ना, परफॉर्मेंस का प्रेजेंटेशन, यानी इनाम एएमसी अपना जो परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रहा है, उसको भी क्या ऑडिट कराना नेसेसरी है? नो, इट इज नॉट। किसी कंट्री का लॉ अगर बोलता है एडिट कराना नेसेसरी है, ऑडिट कराना नेसेसरी है, तो कराना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, सब में बोलेगा, पर अदरवाइज ऑडिटिंग ऑफ परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इज इट ओके? Auditing of performance presentation is not required. If a country laws require, that's a different thing. But otherwise it's not required. GIPS follow करना is not required. Recommended में सब कुछ आएगा, ठीक है? तो I think I have given the basic जो spinal feel होता है ना, कि सब समझ में आ गया चीज क्या है, बाकी we see with the help of questions, ठीक है? तो एक लाइन लिख ले पहले एक बार, कुछ नोट्स। Somebody is asking a doubt, फेस टू फेस स्टूडेंट है, वो डाउट मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। 100%। द स्टूडेंट्स डाउट इज कि मेरे को सुनते हुए परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन के बारे में आपने जो बोला ना, मेरे को सुनते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन का फीलिंग आया, याद है? प्रोफेशनलिज्म में मिस रिप्रेजेंटेशन था ना। 100% करेक्ट। दिस पर्टिकुलर थिंग, परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन, एक तरह से जस्ट सबसेट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, because you are misrepresenting performance, you are misleading investors by giving them, हाँ, और एक चीज अलाउड नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आता है। यू मस्ट हैव सीन म्यूचुअल फंड का जब एडवर्टाइजमेंट आता है ना, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट, तो ये तो लिखा हुआ आता है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, सुना हुआ सबका। एक और चीज आता है मेरे ख्याल से लिखा हुआ, वो है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। माने आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ सेबी गाइडलाइंस, सेबी का, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से आजकल ये भी हो गया है कि उन लोग को लिखना पड़ता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। आई यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? ये तो अलग अलग कंट्री का गाइडलाइंस होगा, बट एथिक्स ये बोलता है, अगर आप क्लाइंट को पास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हो और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, दैट्स ओके। आपको ये बोलने का जरूरत नहीं है कि पास्ट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, बट आप पास्ट दिखा रहे हो और बोल रहे हो, सिंस हमने पास्ट में ऐसा किया था, देयरफॉर यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर में हम लोग ऐसा करेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। समझ गया? सिंस हमने पास्ट में ऐसा किया, देयरफॉर वी एक्सपेक्ट, जबकि इफ यू रिमेंबर समटाइम्स वी डिस्कस्ड बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन, फैक्ट एंड ओपिनियन।
वो अलग चीज था। वो क्या था, सपोज एक कंपनी है जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूं। कंपनी मतलब एक सीमेंट कंपनी है, और सीमेंट कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन ऐसा था, ट्रेंड ये था, ग्रोथ रेट ये था, उसके बेसिस से बोल रहा हूं देयरफॉर आई एक्सपेक्ट दैट ये मार्जिन उसका हाई रहने वाला है। इट्स एन ओपिनियन, आई एक्सपेक्ट। और फैक्ट क्या होता है, ये उसका मार्जिन था, इसका मार्जिन फ्यूचर में इसलिए ऐसा होगा। ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, बिकॉज आप एक ओपिनियन को फैक्ट के फॉर्म में बोल रहे हो ना। स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होगा, जैसे स्टूडेंट ने पूछा, वो बोलेगा सर आप ही तो बोले थे कि ओपिनियन के फॉर्म में बोलना अलाउड है। हाउएवर परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन में इवन ओपिनियन के फॉर्म में बोलना अलाउड नहीं है कि मेरा पास्ट परफॉर्मेंस ऐसा हुआ था, देयरफॉर यू कैन एक्सपेक्ट दैट अपना फ्यूचर में ऐसा होगा। आई अंडरस्टूडिंग? कोई आदमी कंफ्यूज कैसे हो सकता है कि सर ओपिनियन तो दे रहे, ये तो ये बोला यू कैन एक्सपेक्ट, ये थोड़ी बोल रहा होगा ही, नहीं अलाउड है। ठीक है, तो यू पास्ट के बेसिस पे परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन में फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन का स्टेटमेंट पास करना इज नॉट अलाउड। बट दूसरे कंपनीज का जब एनालाइज करते हैं तब पास्ट के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन बोलना फॉर्म्स एन ओपिनियन विच इज अलाउड। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर? ठीक है ना? ओके, सो यू आर राइटिंग समथिंग, लिखिए प्लीज। M/C, members/candidates should present performance in a fair, accurate, complete and ट्रांसपेरेंट मैनर। ट्रांसपेरेंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आई एम नॉट वांटिंग डाउट टू बी थ्रोन ऑन मी लेटर कि सर ट्रांसपेरेंट वर्ड है नहीं, फालतू का डाउट्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एक्स्ट्रा लिखा है जस्ट बिकॉज फैक्ट वर्ड याद रह जाए, लिख दो ना फैक्ट, FACT। एक स्टूडेंट अभिनव जिंदल, उसको लेवल 3 का चिंता होने लग गया है, लिख रहा है ऑल दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ गिफ्ट्स इज टू गेट रिमेंबर्ड फॉर राइटिंग इन लेवल 3। मतलब आपने बोले ना कि लेवल 3 में लिखना पड़ेगा, लेवल 3 में लिखना वैसे नहीं पड़ता है जैसे इंडियन एग्जामिनेशंस में, नंबर 1। नंबर 2, एथिक्स और गिफ्ट से लेवल 3 का रिटन वाला पोर्शन नहीं आता है, 99.99% चांस नहीं आता है, 0.1% अलग बात है। और लिखना पड़ता भी है तो टू द पॉइंट, एकदम शॉर्ट, डैश डैश देके, जैसे मैं कई बार नोट्स में यू वुड फाइंड दैट डॉट डॉट डॉट, फिर आगे बढ़ जाता ना, इनकम्प्लीट ब्रोकन सेंटेंसेस आई डिक्टेट, यू मस्ट हैव सीन समथिंग, डैश दिस डॉट 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 दिस without completing, everything is allowed. Okay, people are studying from countries जहां पे English is the second language, third language, they know that, तो because of which English बढ़िया नहीं होगा। ठीक है, तो English का respect CFA इंस्टीट्यूट मेंटेन नहीं कर रखा है। ठीक है, सब्सटेंस का रिस्पेक्ट है। एनीवे, सो अभी ना तुमको चिंता नहीं करना है अभी। नेक्स्ट पैरा चेंज, बुलेट्स। फर्स्ट बुलेट, नो चेरी पिकिंग, नो चेरी पिकिंग dash. This means you can't show performance of representative accounts. You can't show performance of representative accounts or representative period. दोनों वर्ड समझ गया होगा। जानबूझ के उस पीरियड का परफॉर्मेंस दिखा रहा है जब बढ़िया था, घटिया पीरियड का नहीं दिखा रहा है। जानबूझ के उस क्लाइंट का दिखा रहा है जिसका बढ़िया था, घटिया वाले क्लाइंट का नहीं दिखा रहे, तो चेरी पिकिंग इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट बुलेट, ऑल टर्मिनेटेड अकाउंट्स परफॉर्मेंस हैज टू बी शोन। ऑल टर्मिनेटेड अकाउंट्स परफॉर्मेंस हैज टू बी शोन। All terminated accounts performance has to be shown, bracket. In other words, no survivorship bias. In other words, no survivorship bias. केवल सर्वाइवर्स के बारे में रिपोर्ट करना इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस।
तो नो सर्वाइवरशिप बायस। थर्ड बुलेट, the date from which new accounts are to be shown, the date from which new accounts, समझ गए, new accounts, नए क्लाइंट जो ज्वाइन किए अपने को, the date from which new accounts are to be shown should be as per firm policy, should be as per firm policy in this regard, should be as per firm policy in this regard, should be as per firm policy in this regard. Fourth bullet, based on past performance of the investment management firm, based on past performance of the investment management firm, based on past performance of the investment management firm, comma, expectation of future performance cannot be made, expectation of future performance cannot be made, expectation of future performance cannot be made. पैराचेंज नोट यहां क्लियर कर दो, पैराचेंज नोट, when we do investment analysis, when we do investment analysis of different companies, when we do investment analysis of different companies, comma, we do study the past, हम लोग डेफिनेटली उसका पास्ट देखते हैं, we do study the past. In fact, जिन्होंने इक्विटी स्टार्ट कर दिया है, the chapter we started was what? कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट। जो इक्विटी में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पास्ट का ही तो स्टडी कर रहे हैं। वी डू स्टडी द पास्ट एंड वी कैन मेक expectations of the future, we can make expectations of the future, we can make expectations of the future, expectations of the future bracket not factual statements, expectations of the future bracket not factual statements, bracket not factual statements bracket close, based on the past, based on the past, based on the past. नेक्स्ट बुलेट, ये मैं डायरेक्टली लिखा रहा हूं, समझाया नहीं हूं, आप लोग समझ जाओगे लैंग्वेज से, ठीक है? लिखो, इफ यू आर मेकिंग अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन, इफ यू आर मेकिंग अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ब्रैकेट से 5 minutes टाइप, से 5 minutes टाइप, 5 मिनट का मौका दिया गया आपको, उतना ही टाइम में प्रेजेंटेशन दिखा कि कैसा आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यू गॉट टू state that detailed and full report, detailed and full report is available, detailed and full report is available to both existing and prospective clients, detailed and full report is available to both existing and prospective clients on request, to both existing and prospective clients on request, to both existing and prospective clients on request. समझ गए कि 5 मिनट में तो आई कांट ओपन आउट एवरीथिंग ना, ऑल द स्केड्यूल्स एंड ऑल, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोगों में से किसी को भी इसको डिटेल में जानना है, कोई भी पर्टिकुलर चीज को, तो वो अवेलेबल, आप प्लीज मेल कीजिएगा या बताइएगा, तो मैं आपको फुल रिपोर्ट भेज दूंगा. You should be ready to do that.
ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, ABC Investment Management acquires a new very large account with 2 concentrated positions. एक नया क्लाइंट को पकड़े अपने और उसका 2 पर्टिकुलर स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट है. तो कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन समझते हो? 400 करोड़ में से 120 करोड़ 200 करोड़ 2 स्टॉक पे लगाए हुए, डाइवर्सिफाइड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है. The firm's current policy is to add new accounts for the purpose of performance calculation after the first full month of management. क्या पॉलिसी है? The policy is to add new accounts for the purpose of performance calculation after the first full month. 12th Feb को अगर ज्वाइन किया अकाउंट तो कब से उसको इंक्लूड करेंगे? 12th March. ये पॉलिसी है. CUP is responsible for calculating the firm's performance returns. Before the end of the initial month, CUP notices that one of the significant holdings of the new account is acquired by another company, causing the value of the investment to double. 2 तो concentrated position था ना, उसमें से एक पोजीशन जो एक कंपनी में था वो कंपनी को किसी और ने एक्वायर कर लिया. तो यूजुअली मर्जर्स एंड एक्विजिशन टेक प्लेस एट अ सिग्निफिकेंट प्रीमियम. इफ ए एक्वायर्स बी तो बी का दाम 500 है, तो द एक्विजिशन टेक्स प्लेस एट 700 800 900. तो वैसा हो गया. ठीक है. CUP decides to account for the new portfolio. Because of this holding, CUP decides to account for the new portfolio as of the date of transfer. तो सोचा उसको 12 Feb से इंक्लूड कर लें, thereby allowing ABC Investment to reap the positive impact of that month's portfolio return. Clear cut violation. आपका पॉलिसी है कि आप 1 महीने बाद इंक्लूड करोगे और जानबूझ के सिंस इसमें फायदा हो गया आप उसको उसी डेट से इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है. तो आई थिंक अगर मैं नहीं भी पढ़ाता ना तो भी आप इसमें दिख जाते कि दिस इज टोटली रॉन्ग, उसका समझ में उतना नहीं आता वगैरह वगैरह. बट इट इज एन ईजी क्वेश्चन, ये मानना पड़ेगा. द गुड थिंग इज दैट द मेच्योरिटी विच इट इज प्रोवाइडिंग टू अस. ठीक है. तो इन दैट केस नोबडी शुड बी डूइंग इट राइट. ABC ऑप्शंस देख लो, देखने का जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है. विच इज द आंसर? सी. Violated the code and standard because inclusion of the new account produces an inaccurate calculation of the monthly results according to the firm's stated policies. ठीक है. तो there might have been other accounts also, उनको इंक्लूड नहीं किया होगा, जानबूझ के इसको इंक्लूड कर लिए. जैसे अभी ट्रंप को क्या बोला जा रहा है? ट्रंप को यही तो बोला जा रहा है कि व्हाट आर यू सेइंग कि वी आर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया बट इवन चाइना इज इंपोर्टिंग, इवन यू आर इंपोर्टिंग सम अदर थिंग्स. बट क्लियर कट जो एथिकल वायलेशन है इट्स हैपनिंग. ठीक है. बट वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस. क्वेश्चन नंबर 2, पेपर, अ पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा, was recently terminated as one of the team of 5 members of an equity fund. The fund had 2 value focused managers and terminated one of them to reduce cost. तो एक फंड था, उसमें 5 मेंबर्स थे, उनमें से एक को अपने टर्मिनेट कर दिए. In a letter sent to prospective employers, paper presents with written permission of the firm the performance history of the fund to demonstrate his past success. तो पेपर को नया जॉब चाहिए ना, तो पेपर ऑन पेपर लोगों को बता रहा है कि देखो मैंने अभी जो पास्ट काम किया था उस फंड का परफॉर्मेंस ये था. क्या वो पेपर ने अकेले काम किया था कि पूरा टीम ने काम किया था? पूरा टीम ने, जिसमें पेपर का कोई रोल होगा डेफिनेटली. तो उसको ऐसे बोलना चाहिए कि ये मेरा परफॉर्मेंस था, ये ऐसे बोलना चाहिए ये मेरे टीम का परफॉर्मेंस था जिसका मैं पार्ट था, मेरा ये रोल था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑफकोर्स जॉब में जाने के लिए अपना पास्ट एक्सपीरियंस दिखाएंगे ना, आपने दिखाना ही पड़ेगा. तो दैट वाज नॉट अचीव्ड बाय अस इन सोलो, दैट वाज अचीव्ड बाय अस एज अ टीम एंड दिस वाज माय रोल. Which of the following statement is true? Paper B be violated, C be violated, B है paper violated the code and standard. सब जन right answer दे रहे हैं by claiming the performance of the entire fund as his own. C, paper violated the code and standard by including the historical result of his prior employer. No, he can include, but he cannot state that the entire fund का performance is his performance. He was working as a part of a team. ठीक है ना? So therefore violation. तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी है. यू कुड सी दैट अगर नहीं पढ़ाया होता तो भी आप लोग जज कर पाते. ठीक है ना?
Question number 3. Jurgen CFA is the portfolio manager for the Vellore Investment Management Fund. Portfolio manager for a particular fund. A registered collective investment scheme organized under the laws of South Africa. ये सारे जो म्यूचुअल फंड है, AIF है, ये सारे के सारे they fall under collective investment scheme, because look at the word collective investment. When you invest in a mutual fund, एक जन का पैसा मैनेज हो रहा है, collectively बहुत जन का they fall under CIS. तो साउथ अफ्रीका में भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का कुछ गाइडलाइंस होगा, उसके अंदर रजिस्टर्ड हुआ है VIM फंड. VIM's 2022 regulatory disclosure and marketing material for the fund produced by Jurgen presents annual investment performance data for 2014-2020. 2014 से लेके 20 तक का परफॉर्मेंस दिखा रहा है. दैट इज एक्यूरेट एंड कैलकुलेटेड करेक्टली, कुछ भी गलत नहीं है उसमें. The VIM fund before the assets were moved to the CIS environment in 2021. मैंने कहीं पे गड़बड़ रीड किया क्या? एक लाइन स्किप हो गया. The performance history is that of a composite of separate accounts that followed the strategy used by the VIM fund before the assets were moved to the CIS environment in 2021. तो ये CIS का हिस्सा तो 2021 में बना है. पहले VIM अलग था, It has become a part of CIS from 2021. Understood? Some sort of that thing जो SSCI, Excel ITIX का बात किया मैंने, कि it was managed in a different form पहले. ठीक है, चेंज हुआ है वो ओनरशिप, उसका लीगल स्ट्रक्चर. In presenting the fund's performance history, Jurgen's actions, number A, violate the code and standards. Yes, they do, because he should have properly specified that VIM पहले CIS का part नहीं था. B, are appropriate because the investment performance is accurate. C, are accurate as long as the performance calculations are net of fees. You can see C तो टाइम पास कर रहा है, ग्रॉस ऑफ फीस भी दिखाना अलाउड है, नेट ऑफ फीस भी दिखाना अलाउड है. ठीक है, तो और B जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि सर एक्यूरेट तो दिखा रहे हैं, पर आप दिखा रहे हो अंडर अ डिफरेंट लीगल स्टेटस, तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट. यू कैन शो दैट बट यू हैव टू स्पेसिफाई. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता था इन केस आई वुड नॉट हैव स्पोकन अर्लियर अबाउट दैट स्टफ. बट क्वेश्चन 1 2 तो आप लोग ऐसे ही राइट कर देते. आंसर इज ए. आंसर इज व्हाट? ए. क्वेश्चन नंबर 4. Chen CFA develops marketing material for an investment fund he founded 3 years ago. The material shows 3-year return, 2-year return, 1-year return for the fund. No problem. He includes a footnote that states in small print, past performance does not guarantee future returns. That's okay. Small print is okay. Print का size थोड़ी बोला हुआ, कौन सा font में दिखाएगा. He does not claim compliance with the GIPS standards in the disclosure or footnotes. ठीक है, GIPS follow नहीं करते. He also includes a separate sheet showing the most recent semi-annual and quarterly returns, which notes that they have been neither audited nor verified. Has Chen most likely violated any CFA Institute standards of professional conduct? No. There is no violation. कहीं पे ही violation नहीं है. GIPS follow नहीं करता, नहीं follow करेगा मेरा मन. Audit नहीं करवाता, audit नहीं करवाएगा. Okay? There is no problem at all. कहीं पे भी उसने वायलेशन नहीं किया है. और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, वो लिखाया है, वो तो और बढ़िया ही है लिखाया है. छोटा फॉन्ट में लिखाया है तो और कितने बड़े फॉन्ट में रहते. व्हेन यू सी द बैंक का स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट, दे आर ऑलवेज इन स्मॉल फॉन्ट. सो देयर इज नो वायलेशन एट ऑल. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5. Reen CFA makes a brief presentation about a firm's performance to a group of current and prospective clients. Brief presentation. According to the standard relating to performance presentation, is Reen required to make available the detailed information supporting a presentation to clients upon request? Answer is what? Say yes, both to current clients and to prospective clients. Okay? देवेश शराफ, एक्चुअली क्या होता है ना, आपने इतना खोद के कर लिया एथिक्स कि जब सिंपल होता रहता है तो मन मानता नहीं है, लगता है कुछ तो कुरेदे इसके अंदर. तो देवेश शराफ इज सेइंग, और सर ये फुटनोट वाला पॉइंट नहीं दिया रहता तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये लिखना पड़ेगा. आई ऑल्सो सेड दैट कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. आई सेड आप ये नहीं बोल सकते हो कि पास्ट के बेसिस पे हम लोग का ऐसा होगा. आई हैड ऑलरेडी क्लैरिफाइड द सेम. तो फुटनोट में नहीं लिखा हुआ था तो कोई इशू नहीं.
इट इज नॉट नेसेसरी कि देवेश अपने हर क्वेश्चन में आधी घंटा रुक के उसका डिस्कशन करेंगे कि फटाफट चीजें हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 6, which of the following is a recommended procedure for compliance with the standard relating to performance presentation? When presenting performance, members should, number A, exclude terminated accounts. Should they? No. Use a single representative account. Should they? No. Disclose that investment results were simulated when model results are used. ये पॉइंट में भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझा रहा हूं। हमने एक नया स्ट्रैटेजी निकाला है, बहुत मेहनत से रिसर्च टीम ने एक नया स्ट्रैटेजी निकाला है जिसके अनुसार स्टॉक्स को मैनेज करेंगे, और हम लोग क्लाइंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग पैसा दीजिए, आपका फंड्स बहुत बढ़िया से मैनेज होगा इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। बट ये तो नया स्ट्रैटेजी निकाला है, इट इज अ न्यू स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी का एक्चुअल पैसा तो लगा नहीं है, इस स्ट्रैटेजी में नया पैसा, एक्चुअल पैसा लगा ही नहीं है, नया स्ट्रैटेजी निकाला है हमने। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दिखाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी, जैसे जो बाई सिग्नल है, सेल सिग्नल है, अगर लास्ट 5 इयर्स का डेटा पे लगाता तो रिजल्ट क्या आता। दिस इज एक्चुअल और दिस इज सिम्युलेटेड। तो सिम्युलेटेड का मतलब होता है मॉडल रिजल्ट्स, या सिम्युलेटेड रिजल्ट्स मतलब theoretically given some certain assumptions when actual money is not involved, what would be the results? Are you allowed to show that? The answer is yes, but provided you clearly state it's simulated. You are allowed as a part of performance presentation to show simulated results. However, you have to disclose the results are simulated, actual money was not invested over there. Because there is many a difference between the cup and the lip. जब actual पैसा लगेगा ना तब क्या होगा ये भगवान जाने, ठीक है। यू कैन से नहीं हम लोग तो ठीक ही किए थे बट ऐसा हो गया, भाई पैसा तो गया ना क्लाइंट लोग का। तो सिमुलेटेड परफॉर्मेंस दिखाना अलाउड है विथ डिस्क्लोजर, एंड आपको बताना जरूरी है, चुप रह गए तो दैट्स अ वायलेशन, ठीक है। लिख दो प्लीज। वरुण बंका बोल रहा है बैक टेस्टेड का मतलब क्या होता है। वरुण, बैक टेस्टेड का डेफिनेशन जो होता होगा, बैक टेस्टेड का मतलब शायद लोगों को समझ में आ गया था बैक टेस्टेड का, ठीक है। बैक टेस्टेड का मतलब होता है अपने जो स्ट्रैटेजी है, जैसे टेक्निकल चार्ट्स, काफी जन ने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा होगा चार्ट्स ऑफ स्टॉक्स, तो उसपे बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ओके, जो कि बहुत ही मैथमेटिकल होते हैं कि ऐसा हुआ तो बाई करना है, ऐसा हुआ तो सेल करना है। अब वो अपने अगर पुराने में करते तो इट्स इजीली बैक टेस्टेड, चाहे ज़रोधा हो चाहे जो भी हो, यू कैन इजीली बैक टेस्ट। इफ यू वुड हैव डन दैट, व्हाट वुड हैव बीन योर रिटर्न्स, दैट्स कॉल्ड बैक टेस्टिंग, ठीक है, कि एक्चुअल डेटा पे अपने पास्ट में टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बैक टेस्टिंग। लिखिए, बायलैटरल टॉक वरुण बंका मैं आपसे कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, हाँ लिखना। सिमुलेटेड और मॉडल रिजल्ट्स, सिम्युलेटेड और मॉडल रिजल्ट्स, simulated or model results are allowed to be shown with disclosure, are allowed to be shown with disclosure, are allowed to be shown with disclosure। तो पॉइंट नंबर सी यहां पे आंसर था। वैसे तो बाय एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस पता चल जाता सी आंसर होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, Dixon CFA provides a brief summary of his investment performance. Brief. He indicates that further information is available upon request. Perfect. He tells his clients they can expect a return of 5% in the next 3 years based on past track record, based on strong track record. गलत है, ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस से बोल रहा है 5% रिटर्न आएगा। Has Dixon most likely violated the standards? Yes, by telling his clients they can expect a return of 5% in the next 3 years. ठीक है, based on past performance, नहीं बोलना अलाउड है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कितना सिंपल मल्टीपल चॉइस आता है जहां पे ऐसा लिखा रहता है कि Dixon is not violated because he only said 5% return. And I am so surprised when students fall for it. Is it India only going on? 5% is high or low? How do you know? There was a period after the 2008 financial crisis where all central banks cut interest rate to 0 and negative interest rate.
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 0.25% जब ब्याज चल रहा है इकोनॉमी में, 5% इज हाई और लो? हाई. जापान हैज सफर्ड फ्रॉम डिफ्लेशन फॉर 2 decades. 5% in Japan is like people will jump off the street. 5%. So you can't fall for stupidity and options given which are clear-cut mistakes. Some maturity is required. Understood? You can't judge a number by high or low by looking at the number per se. ठीक है? Okay. आज के डेट में इंडिया में 5% रिटर्न प्रोवाइडेड बाय अ मनी मार्केट फंड इज सुपर्ब. कौन सा फंड? मनी मार्केट लिक्विड फंड जो होता है, जो एकदम लिक्विड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, उसमें 5% इज सुपर्ब. बिकॉज आपको जब चाहे पैसा वापस मिल जाएगा. नो रिस्क एट ऑल. इन्वेस्टमेंट में 3 ही चीज होता है मेरे ख्याल से, मैंने देखा है. सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सेफ्टी माने पैसा डूबने का चांस क्या है. लिक्विडिटी माने पैसा वापस निकालना चाहेंगे तो कितना जल्दी निकल जाएगा. प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रिटर्न क्या है. तो जाहिर है अगर आप सेफ्टी और लिक्विडिटी चाहोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही ना. यू कांट गेट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स. ठीक है, except when the president is standing in your favor. Okay, like crypto has given such a phenomenal return with high liquidity in the past 6 months. Question number 8. Joy CFA works at PIL. When presenting to PIL's prospective clients, Joy uses a brief investment summary and makes available detailed supporting information only upon request. So, ठीक है. Has Joy violated the standards? Answer is what? No. तो आप बोरिंग हो रहे हैं, सेम चीज आते जा रहे हैं. ठीक है. Yes. हाँ, only upon request. सबको ऐसे थोड़ी भेज देंगे. मैंने भी तो वही बोला था, upon request. हाँ, तो it is not specified, तो why should we read that as existing client? The student is saying that it's written only upon client's request. ठीक है. तो do not be that much skeptical. ठीक है ना. तो do not be unnecessarily skeptical. और फिर भी अगर वैसा तुमको लगा भी तो ऑप्शंस हैव टू सपोर्ट कि दिस स्टेटमेंट वुड बी अ वायलेशन इफ ही इज रेडी टू प्रोवाइड दैट ओनली टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट. यस, इट्स अ वायलेशन. ठीक है. ओके, तो वी मूव टू 3E. 3E मैं जो लास्ट क्लास पॉइंट्स का बात कर रहा था ना, हर स्टैंडर्ड का, वो ऐसे ही पॉइंट्स का बात कर रहा था, बुलेट्स का. समझ गए? बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस डन, कि क्वेश्चन की बेस पे क्या सीखे उसका. और सबसे बेस्ट है हिंदी में बनाओ तो चैंपियनशिप आप हिंदी में बनाओगे तो और राइट होगा. ठीक है. डोंट हैव टू वरी अबाउट क्या लिखे, समझ में नहीं आ रहा है. द रियल टैलेंट ऑफ दिस कंट्री हैज बीन टोटली क्रूसिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग इंग्लिश अ स्टेटस. इट कुड बी अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट शुड नॉट हैव बीन अ स्टेटस. हाफ ऑफ द पीपल फील दैट दे आर नॉट केपेबल ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश. पता नहीं क्या हिसाब किताब है. एनीवेज, लेट्स मूव. 3E. 3E बहुत इजी है, आप लोग चैंपियन हो उसमें. प्रेजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. 3E, प्रेजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. सुधांशु दे इज नाउ सेइंग हिंदी पढ़ना नहीं आता सर. अब हिंदी का स्टेटस ऐसा हो गया लोगों का कि हिंदी जो है, जब इससे हिंदी, जब मैं बोल रहा था ना हिंदी में लिखे, तो आई मेंट इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी में लिखे. यानी कि वो जो अक्षर है वो क ख नहीं बोल रहा था. ओके, ऑब्वियसली मोस्ट पीपल, आई एम श्योर, व्हेन दे राइट हिंदी नाउअडेज दे राइट इट इन इंग्लिश, इजंट इट? आई वाज मीनिंग दैट. चलो, प्रेजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. तो प्रेजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में सिंस आप लोग का बैकग्राउंड है, अननेसेसरली टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं होगा. चाहे वो करंट क्लाइंट हो, चाहे फॉर्मर क्लाइंट हो या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो. करंट क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, फॉर्मर क्लाइंट जो क्लाइंट था अब छोड़ दिया हम लोग को, या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो हम लोग से मीटिंग किया, अपना क्लाइंट हो सकता है और उन मीटिंग्स में कुछ डिस्क्लोज किया, अभी तक क्लाइंट हुआ नहीं है. इन तीनों पे कॉन्फिडेंशियलिटी लागू है. क्लियर? ये पहले डिस्कस नहीं हुआ था. तो इफ देयर वाज अ फॉर्मर क्लाइंट और अब नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो. ठीक है? कोई आपके साथ बैठ रहा है क्लाइंट बनने के लिए, 3-4 मीटिंग्स में काफी जान ली उसके बारे में, उसका उस समय डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, ना ही बाद में ऑब्वियसली. ठीक है? तो अब किसी को ध्यान ये आ रहा होगा कि सर अगर कोई क्लाइंट बनने वाला था अपने पास आया और फिर वो क्लाइंट बना नहीं,
तो उस केस में जो इन्फॉर्मेशन था वो डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या? एज पर द स्टैंडर्ड यस, बट मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, बोलते बोलते आ गया मन में। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? ये क्लाइंट बनने वाला था, ठीक है, फिर वो अपने से नहीं बना क्लाइंट, बट वी गेट टू नो समथिंग अबाउट हिम, ठीक है, तो दैट्स नॉट रिटन, आई हैव नॉट सीन इन क्वेश्चन, बट लॉजिकली तो इट्स अलाउड। तो करंट क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, किसी का भी आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट में मैंने पहले शायद जो लिखाया था 30,000 फीट वाले क्लास में, वो क्या था बताइए आप लोग? अलाउड बाय द क्लाइंट, एक था अलाउड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट बोला है कि मेरा इंफॉर्मेशन मेरी नीज के साथ डिस्कस करना, क्लाइंट बोला है। या सेकंड रिक्वायर्ड बाय लॉ। ओके, रिक्वायर्ड बाय लॉ में तो ऐसा लगता है कि अगर पुलिस या कोई पकड़ लिया है तुमको और बोल रहा है बता इसके बारे में, तो तुम्हारा दम है क्या नहीं बताने का? और डजंट इट सीम टू बी ऑब्वियस कि रिक्वायर्ड बाय लॉ में होगा, और इट शुड नॉट बी रेड विद दैट थिंग। बट रिक्वायर्ड बाय लॉ में कंफ्यूजन कहां हो सकता है? लेट मी टेल यू। अपने लर्निंग मॉड्यूल 2 कर लिए या नहीं किए? इन केस यू रिमेंबर, लर्निंग मॉड्यूल 2 हमने किया है कि नहीं किया है? कर लिया है। लर्निंग मॉड्यूल 2 पीसीपी पूरा का पूरा डिक्टेटेड नोट्स हुआ है, जहां पे कोड एंड स्टैंडर्ड था, और वो था कि कैसे इन्फोर्समेंट होता है स्टैंडर्ड्स का ऑन द कवर्ड पर्संस। लर्निंग मॉड्यूल 2 कर लिया है हमने, ठीक है ना? नाउ in case you are working in a firm and a fellow colleague is doing insider trading, an investigation has been started against him. God knows how the PCP came to know of it. An investigation has been started by the PCP against the colleague, because that colleague and you both are covered persons. The CFA Institute therefore approaches you to provide information about the colleague. Okay, PCP इन्वेस्टिगेशन में ये करता है ना, इंटरव्यू लेता है लोगों का, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, तो आपको अप्रोच किया, यू आर अ कवर्ड पर्सन। अब CFA इंस्टीट्यूट तो वैसे लीगल अथॉरिटी नहीं है, CFA इंस्टीट्यूट इज नॉट लॉ। तो अब CFA इंस्टीट्यूट जब मांग रहा है उस कलीग के बारे में, तो इन दैट केस वो प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, ये डिस्कस कर रहे हैं। Apply common sense. What do you think? Apply common sense. एक बार apply common sense. What do you think? If you apply common sense, you will come to the conclusion that provide करना है. If you apply common sense, so in that case you will find. तो यहां पे एक बहुत थिन लाइन है, इनका यही लिखा हुआ है, सुनना प्लीज। अगर द लॉ ऑफ द लैंड 1A, व्हाट वाज स्टैंडर्ड नंबर 1A? 1A कौन सा था? सबको याद होगा, नॉलेज ऑफ लॉ। तो अगर उस कंट्री का लॉ बोलता है कि किसी को भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्लाइंट का प्रोवाइड नहीं करना है, किसी को भी एक्सेप्ट लॉ को, तो उस केस में आपको CFA इंस्टीट्यूट को एकदम भी प्रोवाइड नहीं करना है। बट अगर उस कंट्री का लॉ ऐसा नहीं बोलता है, तो यू हैव टू कोऑपरेट विद द CFA इंस्टीट्यूट। यू शुड कोऑपरेट। Understood? You should cooperate with the CFA Institute and provide information about that colleague in the PCP का this thing. तो यूजुअली आप क्या रहेगा, आपको ये नहीं मानना है कि लॉ बोलता है, यानी द डिफॉल्ट प्रिजम्पशन इज दैट लॉ ना किया है कि CFA इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना, दैट इज नॉट योर डिफॉल्ट प्रिजम्पशन। योर डिफॉल्ट प्रिजम्पशन इज दैट लॉ अलाउ करता है। तो इन दैट केस अगर CFA इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना है, वो भी अलाउड है। मैं अभी नोट्स को और ठीक करने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है? इलीगल एक्टिविटी। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग इज ऑल्सो इलीगल एक्टिविटी। तो इलीगल एक्टिविटी को आप रिपोर्ट करते हो पुलिस को, या इलीगल एक्टिविटी को आप रिपोर्ट करते हो रेगुलेटर को, वो भी उस लॉ में फॉल कर गया, जो बोले थे ना रिक्वायर्ड बाय लॉ, उसके अंदर फॉल कर गया। बट वी विल मेक इट मोर एक्सप्लिसिट। यानी मेरे ख्याल से 4 एक्सेप्शंस हो गए वैसे। पहला हो गया द क्लाइंट हैज अलाउड फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड। दूसरा हो गया रिक्वायर्ड बाय लॉ। तीसरा हो गया द क्लाइंट एंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज। चौथा हो गया इन कोऑपरेटिंग विद द CFA इंस्टीट्यूट PCP। इन कोऑपरेटिंग विद द CFA इंस्टीट्यूट PCP, ठीक है? तो 3 तो बुक में ही लिखा हुआ है, चौथा मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं बिकॉज आई वांट टू बी क्लियर कट अबाउट इट। इफ यू आर कोऑपरेटिंग विद द PCP एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट अनएथिकल, दैट इज अलाउड, अनलेस द लॉ ऑफ द लैंड डज नॉट अलाउ द सेम, तब अलग बात है।
ठीक है, प्रेजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और वो सब तो आपको पता ही है, नहीं सर हम तो डिस्क्लोज इसलिए किए बिकॉज क्लाइंट का फायदा होने वाला था। वो फायदा नहीं चाहिए। यू आर मैनेजिंग फंड्स फॉर एन एंडाउमेंट, ओके, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के लिए आप फंड मैनेज कर रहे हो, और कोई डोनर है गुजराती भाई जो भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी को 500 करोड़ डोनेट करने वाला था, इसलिए वो भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी का स्टेटमेंट मांगा था। आप नहीं दे सकते हो। यू अंडरस्टूड, यू कैन नॉट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट आपको नहीं सोचना। ठीक है, ये सब डिस्कशन हो गया था अपना। अब बात है कि अगर एक मिनट, क्लाइंट्स लोग है, क्लाइंट्स लोग एक फर्म का, तो फर्म में तो बहुत सारे लोग हैं जो क्लाइंट से डील कर रहे हैं। देयर इज अ मार्केटिंग टीम विच इज डीलिंग विद द क्लाइंट, मीटिंग हिम, द रिसर्च एनालिस्ट डीलिंग विद द क्लाइंट, देयर इज द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मोस्ट क्लोजली डीलिंग विद द क्लाइंट। तो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन जो है वो तो अपने बीच में डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे, यू अंडरस्टैंडिंग। हम लोग बोल रहे हैं क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको लीक आउट नहीं करना है, बट हमारे बीच में जो लोग मैनेज कर रहे हैं, तो जो लोग मैनेज कर रहे हैं उन लोग को तो उनसे रिलेटेड पता होना पड़ेगा ना। बट मैंने बोला उनसे रिलेटेड, यानी कि मार्केटिंग टीम को जिस चीज का दरकार ही नहीं है वो चीज अपने क्यों बता रहे हैं। क्लाइंट के बारे में मार्केटिंग टीम को जिस चीज का रिक्वायरमेंट है ही नहीं वो चीज मार्केटिंग टीम क्यों जानेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट by the respected brain by the firm to set policy such that everything about the client is not known by everybody working under the firm. Only those who are dealing with the client and in the manner that they are dealing, they should know that much information. उसके अलावा client का information by big management firms, say JP Morgan and all that is maintained electronically stored nowadays. तो physical documents होता नहीं है, all the information is electronically stored. तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होता है, तो उस केस में उसका तो हैकिंग हो सकता है कि सर्वर हैक हो गया और सारा क्लाइंट डेटा रिलीज हो गया। सुनते रहते हैं ना अपने, हैकिंग हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एज अ ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट यू हैव गुड आईटी सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच आर अप टू डेट टू प्रिजर्व क्लाइंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद भी हो गया वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट आपने वो केयर किया था क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुपरवाइजर हूं, आई एम द हेड ऑफ द कंप्लायंस डिपार्टमेंट in charge of taking care of client information. Those analysts who are working, they have access to the client ka information and they have the right to download the same on their personal computer. They are going home, they are downloading the same on their personal computer, and then something is happening to their personal computer because obviously उसमें quick heal नहीं लगा रखा है। Are you understand? तो आपने ऐसा डाउनलोड का क्यों दिया? आप क्या प्रैक्टिसेस कर रखे हो? द फैक्ट दैट अगर वो कवर्ड पर्सन था जो एनालिस्ट है जिसने डाउनलोड किया, वो उसका गलती है, दैट्स अ मिसकॉन्डक्ट 1C, उसने डाउनलोड कैसे कर लिया। बट द फैक्ट दैट आप एक कंप्लायंस ऑफिसर उसको रोक नहीं पाए, दैट्स ऑल्सो क्या बोलते हैं, वायलेशन। ठीक है, अब सपोज हम लोग क्लाइंट के साथ एक मेल शेयर कर रखे, मेल, वो मेल शेयर कर रखे फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, और एट द सेम टाइम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रखे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ऐड कर रखे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ना हम लोग के सब सारे जो मेन पर्सन है ना, मार्केटिंग स्टाफ, ये सब है, सो दैट क्लाइंट को सर्विस मिल सके। यू आर द क्लाइंट। अब तुमको एक छोटा सा पेपर चाहिए, अब तुम वो मेन पर्सन को थोड़ी बोलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा आई नीडेड दिस पेपर, तो वो चैट चलता है, क्लाइंट लोग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। तो अपने को क्लाइंट को बताना जरूरी है कि भाई ते अपना बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो ग्रुप में मत डाल देना। ये ग्रुप में तो सभी जन है ना, एवरीबडी इज देयर ऑन द ग्रुप, सो यू हैव टू अंडर, वी हैव टू टेल द क्लाइंट दैट डू नॉट, द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट सेफ व्हेन यू आर revealing to us some sensitive information. For example, you're going to put 600 crore with us or something, so in that case don't tell it on the group, tell it discreetly in a certain manner. All modes of communication would not be safe for you. ये क्लाइंट को बताना जरूरी है, फर्म के एम्प्लॉइज को ट्रेन करना जरूरी है कि रिगार्डिंग क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसके साथ कैसे शेयर करना है। देयर शुड बी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू प्रिजर्व कॉन्फिडेंशियलिटी, अंडरस्टूड, so they can really dig inside it, अंदर जाके into the stuff. Got it? Okay, लिखिए 3E, preservation of confidentiality. It applies
It applies to former, F-O-R-M-E-R, former clients, comma, existing clients as well as prospective clients. Former clients, comma, existing clients as well as prospective clients. Full stop. Client information should be kept confidential. Client information should be kept confidential. Client information must be kept confidential except under the following situations. Except under the following situations. Dash. Para change. First bullet. First bullet. Client is carrying out illegal activities. Client is carrying out illegal activities. Second bullet. Disclosure is required by law. Disclosure is required by law. Third bullet. On the request of the client. On the request of the client. Request of permission of the client. Request oblique permission of the client. Request oblique permission of the client. मैंने रिक्वेस्ट ऑब्लिक परमिशन क्यों लिखाया? क्लाइंट का हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो, याद होगा, तीसरी चौथी बार वर्ड यूज हो रहा है, यानी हम लोग डिसाइड करते हैं कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है। अचानक से क्लाइंट को एक स्टॉक के बारे में कुछ पता चला और उसने बोला ये वाला स्टॉक बाई करो मेरे लिए, ये वाला स्टॉक बाई करो मेरे लिए। तो सूटेबिलिटी का जो डिस्कशन लास्ट क्लास हो गया था कि बाई करना चाहिए कि नहीं, मैं अभी वापस उस पर नहीं जा रहा हूं। नाउ वो स्टॉक हमने क्लाइंट के लिए बाई कर दिया, सपोज वो सूटेबल था एंड ऑल। एट द सेम टाइम वो स्टॉक हमने बाकी क्लाइंट्स लोग के लिए बाई कर दिया। कैसे कर दिया? ये तो वो क्लाइंट बोला था ना, उसका इंफॉर्मेशन था। आपने कैसे, अगर आपको करना ही था, आपको लगा कि बाकी क्लाइंट्स के फायदा आएगा, आप उससे परमिशन लेते कि भाई आप स्टॉक बोले आपके लिए मैं पूरा बाई कर दे रहा हूं, उसके बाद क्या मैं बाकी क्लाइंट्स के लिए बाई कर सकता हूं? तो आपने परमिशन लिया क्या उससे? ऐसे ऐसे कैसे उसका सुना हुआ तुमने बोल दिया बाकी लोगों को? यू कैन डू दैट, इसलिए परमिशन बोला। ठीक है, पैरा चेंज। अब बुलेट लिखते हैं। अभी बुलेट ही चल रहा था क्या? वो बुलेट ही चल रहा था। पैरा चेंज, एक्स्ट्रा डिगिन लिखो, एक्स्ट्रा डिगिन, एक्स्ट्रा डिगिन। और मैंने वो वाला पॉइंट लिखाया है नहीं, सीएफए इंस्टीट्यूट वाला है ना। तो रिक्वायर्ड बाय लॉ में ब्रैकेट में लिख दो, रिक्वायर्ड बाय लॉ में, रिक्वायर्ड बाय लॉ में ब्रैकेट में even cooperating with PCP is allowed. Even cooperating with PCP is allowed. PCP याद है ना, प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम। Even cooperating with PCP is allowed. हाँ, उसके बाद extra dig in, first bullet. For different employees of the firm dealing with the client. For different employees of the firm dealing with the client. For different employees of the firm dealing with the client. Comma, only relevant information should be shared. Only relevant information should be shared. Only relevant information should be shared.
should be shared. Next bullet. Firm should inform the client. Firm should inform the client. Firm should inform the client that all modes of communication, like common WhatsApp group, are not safe. Common WhatsApp group are not safe. Third bullet. Firm is responsible for having robust IT systems, robust IT systems to keep client information safe. ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं. से बड़ा क्वेश्चन है ये. Giddings CFA is responsible for compliance at GWH, a large broker dealer and investment advisor in connection with GWH's wealth management business. तो GWH का wealth management business भी है, ओके. तो उसमें he is the compliance का head. The company maintains personally identifiable information, name, address, phone number, account numbers, balances, holdings of its clients. Giddings adopts a number of policies and restrictions, including a code of conduct that addresses employees' access to and handling of this confidential information. That is good. Marsh CFA, who works for GWH as client service associate level पे, decides to download client data to his personal server located at his residence to facilitate his telecommuting, जिससे रास्ते में client का सेवा कर पाएगा. Marsh's server is hacked and portions of the personal client information Marsh downloaded are posted for sale on the internet. Did either Marsh or Giddings violate the CFA Institute code and standards? आंसर क्या है? बोथ. ओके, जो मार्श है वो तो मिसकॉन्डक्ट की है 1C. आप कैसे क्लाइंट का इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिए, और जो गिडिंग्स है वो भी वायलेट किया ये वाला स्टैंडर्ड, बिकॉज आपको जो माने आप कंप्लायंस के फिर क्या जिम्मेदार है. जब जो एम्प्लॉइज लोग हैं वो लोग डाउनलोड कर पा रहे हैं कंप्यूटर पे, तो फिर क्या सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस किया आपने. ठीक है, तो दोनों का वायलेशन है, बोथ है वायलेटेड. ऑप्शन नंबर सी. Hicks CFA is an investment advisor. A friend asks Hicks to share clients' contracts in order to solicit charitable donations. ठीक है, तो friend is asking Hicks to share client contracts in order to solicit charitable donations. Hicks responds that he is unable to share current clients' contact details and instead provides email address of several former clients. तुम लोग शायद स्टोरी नहीं समझा कि बड़ा बड़ा क्लाइंट्स तो मेरा है ना, तो तुम मेरा फ्रेंड आ रहा है बोल रहा है यार अपने क्लाइंट्स लोग का मेरे को रेफरेंस देना, तो हम वो लोग के पास जाके ना डोनेशन मांगेंगे वो लोग को. ये हो रहा है. तो करंट क्लाइंट्स का तो नहीं दिया, पर फॉर्मर क्लाइंट्स का दे दिया. गड़बड़ हो गया. द नेक्स्ट डे हिक्स फाइंड्स आउट दैट वन ऑफ हिज कलीग्स, Claudia Moll, a level 3 candidate in the CFA program, has failed to inform her supervisor about her personal bankruptcy resulting from large medical bills. ये तो चला गया 1A में. 1A में ऐसा किए थे, याद है? मेडिकल बिल्स के कारण कोई बैंकरप्ट हो गई बेचारी. Have the standards most likely be violated? तो मॉल ने, हिक्स ने, किसने वायलेट किया है क्या? किसने? हिक्स ने. By sharing information of what? Former clients. ठीक है, मॉल का कोई वायलेशन नहीं है. पर्सनल बैंक्रप्सी हो सकता है, if it is because of fraud committed, then it is a violation of 1A. But otherwise, personal bankruptcy is possible. There is no issue.
Which of the following is a recommended procedure for compliance with the standard relating to preservation of confidentiality? Recommended procedure for compliance. Members should convey to clients that not all firm sponsored communication methods may be suitable for transmitting confidential information. यही तो मैंने लिखा है कि सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में प्लीज आप अपना इंफॉर्मेशन मत दे दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज सम आर ओपनली अवेलेबल टू एम्प्लॉइज इन जनरल. वो सेम चीज लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है. Procedure 2. Members should encourage their firms to provide periodic training or confidentiality procedures to all clients. गड़बड़ है. Clients को क्यों ट्रेनिंग देगा? ट्रेनिंग तो एम्प्लॉइज को देगा ना. Members or candidates should encourage their firms to provide periodic training on confidentiality procedures to all क्या? To all employees. Why to all clients? Procedure 3. Members should become experts in information technology security in order to protect client confidentiality. नहीं, कहीं पे भी दिस इज अ क्लियर कट थिंग. अपने आईटी में इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं. आई नेवर डिक्टेटेड दैट पार्ट. अरे जो रीजनेबल केयर वी शुड टेक, बट वी कैन नॉट बी एन आईटी एक्सपर्ट कि तुम फ्रॉड और क्रिप्टो पे क्या तो कोर्स कर लेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग एंटी हाईजैकिंग का कोर्स, वो सब नहीं है. तो इन दैट केस क्या पूछा था वो, विच इज अ रेकमेंडेड प्रोसीजर. कौन सा? प्रोसीजर 1. प्रोसीजर 1 इज अ रेकमेंडेड प्रोसीजर. 2 and 3 आर नॉट रेकमेंडेड प्रोसीजर. ठीक है. 4. Which of the following is a recommended procedure for complying with standard relating to preservation of confidentiality? Disclose to authorized fellow employees. Fellow employees को बताओ only information that will improve service to the client. उतना ही बताओ जितना required है. यही तो बोल रहा है वो जो मैंने बोला. relevant बोलो. Same language तो बोलेगा नहीं, वो मेरा डिक्टेट किया हुआ. Procedure 2. Encourage the adoption of standard confidentiality procedures utilized by leading firms in the industry. बोल रहा है encourage the adoption of standard confidentiality procedures utilized by leading firms in the industry. यहां फंसा रहे हैं. बोलो कौन सा आंसर होगा? वन तो राइट है ही, तो या तो ए होगा या सी होगा. अगर लीडिंग फर्म्स इन द इंडस्ट्री गलत तरीके से मैनेज कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर लीडिंग फर्म्स इन द इंडस्ट्री गलत तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी मैनेज कर रहे हैं, हम लोग अपने फर्म को बोलेंगे लीडिंग फर्म्स जो है उनको फॉलो करने. लीडिंग फर्म्स में नॉट नेसेसरली फॉलोइंग द बेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस. दे मे बी लीडिंग ऑन अकाउंट ऑफ सम अदर फैक्टर्स. ओके, तो दिस इज नोवेयर रिटन दैट लीडिंग फर्म्स को फॉलो करना है. ठीक है, बिकॉज देयर प्रैक्टिसेस मे नॉट बी एथिकल. दे मे बी फॉलोइंग लूपहोल्स इन देयर प्रैक्टिसेस. दे आर नॉट मैनेजिंग द आईटी सिस्टम्स प्रॉपर्ली. नहीं दिखता है कि तुमको इंडिया जैसे कंट्री में कितने सारे बैंक्स है, ये है वो है, जो प्रॉपरली ऑपरेशंस मैनेज नहीं करते हैं, एंड दे आर द लीडिंग बैंक्स. अंडरस्टूड? सो आंसर इज ओनली प्रोसीजर 1. गुड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन इसलिए बिकॉज रॉन्ग होने का स्कोप है इस क्वेश्चन में. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. पूरा फंसाने वाला क्वेश्चन है. Which of the following most likely violates the standard relating to preservation of confidentiality? Recommending a former client as a potential donor for a local charity. क्या पूछा है? Which of the following violates? B. Disclosing the details of client activity to the CFA Institute. ये तो allowed है. Providing confidential information about a prospective client when permitted by the prospective client. ये भी अलाउड है. तो आंसर कौन सा है? ए. कि आप किस तरह से इस तरह पोटेंशियल डोनर फॉर लोकल चैरिटी, उसका नाम कैसे दे सकते हो? वो लोकल चैरिटी को नाम दे रहा है कि ये तुमको डोनेशन दे देगा. सोचो. और ये सब क्यों एथिक्स में डाला गया है ना? बिकॉज इससे ट्रस्ट हट जाता है क्लाइंट्स लोग का. फिर वो पोटेंशियल डोनर बताएगा, जानता है ये लोग ऐसे ही करते हैं, नाम दे देते हैं हम लोग का, फिर फोन आता रहता है, प्रेशर होता है हम लोग के ऊपर. इस तरह से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशन का नाम बदनाम होता है. You understand the larger thing that happens. Who would want you be pursued by local charity? क्या आप कैंसर के लिए डोनेशन नहीं दे सकते हैं? ये सब चालू हो जाएगा, फिर थ्रू आएगा, मामा चाचा किसके थ्रू.
Bar CFA, a portfolio manager receives an unsolicited stock order from a client. Unsolicited stock order मतलब client खुद से चला के एक stock के बारे में बोल रहे हैं. She discusses the order with a firm's analyst to determine how it will impact the client's portfolio. Suitability, last class. The analyst determines the stock to be highly undervalued and suitable for the client. Suitability हो गया. Bar calls clients for whom the stock is suitable to recommend the stock without permission लिए हुए. बाकी लोग को बता रहे हैं. She then executes a single block trade for the original client as well as other clients for whom the stock is suitable. Double violation. एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी का, दूसरा प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. कम से कम पहले उसका ट्रेड लेता ना. एक ब्लॉक ट्रेड लिया, सारा शेयर्स बाई किया और सबको एलोकेट कर देगा, इसको भी. ये बोला था और इसको उस भाव पे मिलेगा जो ब्लॉक ट्रेड है. यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. 10,000 शेयर बाई करने बोला था, आपने 1 लाख शेयर बाई कर लिए, तो 1 लाख शेयर तो प्रेशर के कारण ज्यादा दाम पे आएगा. When you go to buy 10,000 shares, the trade can be executed at 500. When you go to buy 1 lakh share, the price will move up and the trade will be executed, say at 550. And this bichara will also buy the share at what? 550. Bar most likely violated, single block trade for the original client as well as other clients for whom the stock is suitable. Bar most likely violated the standard only by executing single block trade, only by discussing unsolicited client order with the client, both by executing single block trade and by discussing unsolicited client orders with the client. आंसर कौन सा है? सी. दोनों वायलेशन. आपने उससे परमिशन लिया शेयर करने के पहले, आपको परमिशन लेना चाहिए था. वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट का, उसको पता है स्टॉक में कुछ हो रहा है. अब कोई बोलेगा सर उस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का बात होता तो वो अलग चीज है. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तब तो उसके लिए बाई नहीं करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, वो एक अलग ही चीज हो गया. ओके, लास्ट में we missed out the other options that were written over here. Please check the options. So if you check it, option number B बोल रहा है कि is there a violation relating to the fact that उसने अपने analyst को inform किया. तो analyst को तो inform किया था suitability के लिए, that was not a violation. उसके बाद जो अदर क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करके और उनके लिए जो ऑर्डर प्लेस किया, दैट वाज अ वायलेशन. अंडरस्टूड? सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ वायलेशन एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द आंसर. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बट नॉलेज वाइज समझो, नॉलेज वाइज बिफोर दे एक्चुअली शेयर इट विथ अदर क्लाइंट्स एंड एग्जीक्यूट ऑर्डर फॉर द क्लाइंट, दे हैव टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल क्लाइंट. ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो क्या बोला कि वो जो एनालिस्ट से शेयर किया, वॉज इट अ वायलेशन? नो, इट वॉज नॉट अ वायलेशन बिकॉज एनालिस्ट तो शेयर करेगा ही ना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सूटेबिलिटी. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, आई थिंक दोनों इजी था. स्टॉप करते हैं, डिस्कशन अच्छा हुआ है. एंड एज आई सेड, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, एथिक्स वाला, बिकॉज मैं 5 और 6 जो है ना वो रिकॉर्ड कर दूंगा. ठीक है? जो इस तरह शेयर हो जाएगा. अपने 4 और कर लेते हैं. ठीक है? 2 क्लास या 3 क्लास स्टैंडर्ड नंबर 4 कर लेते हैं. ठीक है? तो देन वी विल स्ट्रेट अवे गेट इनटू गिप्स. सुधांशु देव बोल रहा है कि सर वो तो एनालिस्ट से शेयर किया है. तो एनालिस्ट से क्यों शेयर किया था? एनालिस्ट से शेयर किया था फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग सूटेबिलिटी. फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग सूटेबिलिटी के लिए शेयर किया था. बट इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट आप उसके लिए यूज करेंगे बाकी क्लाइंट्स का ऑर्डर करने के लिए. ठीक है? ओके, चलो. 10 classes of derivatives and 6 classes of alternatives becoming too much. ठीक है? तो college has started and all that stuff, so because of which we are slowing it down. But slowing it down doesn't mean that you don't do it. The only josh you will get right now is through derivative and alternate, believe me. ठीक है? TVM और DCF को slow करो, slow. In case वो pending है, उसको ज़्यादा तेजी मत भगाओ. Derivative और AI को ध्यान दो, मजा आएगा तुमको. ठीक है ना? Okay.